وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين اور كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور لاکھوں درود و سلام ہو نبی امی پر جن کے صدقے دوپہر میں آج ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ذمے بے شمار کام رکھے ہیں جن کاموں کو انسان انجام دیتے ہیں، انہی میں سے ایک کام اور ایک فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز رکھا ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہم بدن کی صحت کے لیے، بدن کی قوت کے لیے، طاقت کے لیے غذائیں کھاتے ہیں، ساگ سبزیاں کھاتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ایمانی طاقت کو بڑھانے کے لیے، ایمانی طاقت میں جوش و جذبہ پیدا کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں دی ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک نماز ہے۔ کسی بھی کام کرنے کے لیے انسان کو اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ جیسے کہ آج کل مثالوں سے باتیں سمجھ میں آتی ہے، آج کل موبائل ہے، موبائل چلانے کے لیے یا موبائل کو استعمال کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ان میں سے ایک ضرورت ہے کہ اگر موبائل میں بیٹری نہ ہو یا چارج نہ ہو تو ہم اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجیے نماز ہے۔ نماز کو اگر ہم اس کے قاعدے کے مطابق نہیں پڑھیں گے تو یہ نماز ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اگر اچھی طریقے سے پڑھتا ہے تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار ہو کر آسمان پر جاتی ہے اور اس کے لیے دعائیں کرتی ہوئی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ نماز کو جو ہی خراب کر دیتا ہے، اچھی طریقے سے وضو بھی نہیں کرتا، نماز میں ادھر ادھر بھٹکتے رہتا ہے، تو وہ نماز جو ہے اس آدمی کے لیے بد دعائیں کرتی ہوئی اوپر جاتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ جس طریقے سے اس آدمی نے مجھے برباد کیا اسے بھی برباد کرنا۔ تو نماز کے صحیح ہونے کے بہت سارے قواعد ہیں۔ ان قواعد میں سے ایک قاعدہ جس کو ہم فرائض کے نام سے جانتے ہیں، اسی طریقے سے ایک قاعدہ جس کو ہم واجبات کے نام سے جانتے ہیں، ایک قاعدہ جس کو ہم سنن کے نام سے جانتے ہیں، ایک قاعدہ جس کو ہم مستحبات کے نام سے جانتے ہیں۔ فرائض کیا ہے؟ فرائض سمجھ لیجئے جس طریقے سے انسان کے اندر جان ہے اسی طریقے سے نماز کے لیے فرائض ہے۔ اگر فرائض ہم چھوڑ دیں گے تو ہماری نماز نہیں رہے گی۔ تو فرائض یہ نماز کے لیے جان کی مانند ہے۔ نماز میں بہت ساری فرائض ہیں، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ 14 فرائض ہم گناتے ہیں۔ تو سب سے پہلا فرض ہے نماز کے اندر وہ یہ ہے کہ جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ پر ہم نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اگر جگہ ناپاک ہوئی تو نماز ہماری نہیں ہوگی۔ کتنی جگہ پاک ہونی چاہیے نماز کے لیے؟ نماز کے لیے جو اعضاء زمین پر ٹکاتے ہیں ہم، وہ اعضاء یعنی ان اعضاء کی جگہ پاک ہونی چاہیے، تب جا کے نماز ہوگی۔ مثلا دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہتھیلیاں، پیشانی، ناک، کم سے کم اتنی جگہ اگر پاک ہو تو ہماری نماز درست ہوگی۔ اسی طریقے سے بدن کا پاک ہونا نماز کے صحیح ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ پاکی
नापाकी की दो किस्में हैं, एक है हदस अकबर, एक है हदस असगर। हदस अकबर का मतलब हुआ कि बड़ी नापाकी, मसला किसी को नहाने की जरूरत है, तो नमाज की सही होने के लिए बड़ी नापाकी से भी पाक होना जरूरी है और छोटी नापाकी से भी पाक होने की जरूरत है। छोटी नापाकी क्या है? वजू का ना होना, यह हदसे असगर है, यानी अगर वजू ना हो किसी का तो नमाज नहीं हो सकती, चाहे कोई हो। इसी तरीके से कपड़ों का पाक होना नमाज की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। कपड़ों का पाक होना नमाज की सेहत के लिए जरूरी है, इसलिए कि अगर कपड़ा पाक ना हो तो आदमी जो है वो बदन, कपड़े जो है वो बदन से चिपका हुआ होता है, लगा हुआ होता है, तो गोया के वो नापाकी लेके नमाज पढ़ रहा है। तो कपड़े भी हमारे पाक हो। अब कपड़े की जो नापाकी है उसकी भी दो किस्में हैं, एक को कहा जाता है नजासत गलीज़ा, एक को कहा जाता है नजासत खफीफा। नजासत गलीज़ा वो नजासत जो बड़ी नजासत हो, उसमें गंदगी ज्यादा हो, जैसे पेशाब पाखाना है। नजासत गलीज़ा हमारे बदन पर या कपड़ों पर अगर 1 रुपए के बकदर या उससे ज्यादा लगी हुई हो तो इस हालत में नमाज सही नहीं होगी। अगर 1 रुपए से कम नजासत, पेशाब पाखाना, ये सब अगर बदन पे या कपड़े पे है तो नमाज हो सकती है। अगर 1 रुपए से ज़्यादा है तो ये मिक़दार ज़्यादा है, इसको धोना पड़ेगा, तब नमाज होगी। इसी तरीके से एक फर्ज है सतर का छुपाना। ये ऐसा फर्ज है जो नमाज के अंदर भी फर्ज है और नमाज के बाहर भी फर्ज है। पहली बात तो ये कि हम मालूम कर लें सतर कहाँ से कहाँ तक है और किनकी कहाँ से कहाँ तक है। नंबर 1, मर्दों का सतर, नाम जिसको हम डोरी के नाम से जानते हैं, वहां से लेकर घुटनों तक मर्दों का सतर है, चाहे नमाज में हो या नमाज के बाहर हो, हर हालत में इतना ढांकना और छुपाना लाजिम और ज़रूरी है। अब वो हज़रात समझ लें जो ढका खोजते हैं या अपने सतर को छुपाते नहीं है, वो आप खुद समझ लें कि वो क्या कर रहे हैं। बहरहाल मजबूरी अलग बात है, मजबूरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो मजबूरी में कर सकता है, लेकिन जो शौकियाना है, जो शौकियाना नहीं पहन लेते, कभी ढका खोज देता है, कभी लुंगी ऊपर चढ़ा लेता है, कभी हवा लगाने लगता है, तो ऐसे हज़रात खुद समझना कि हम क्या कर रहे हैं। वो तो ऐसा फर्ज है जो 24 घंटे आपके साथ लगा हुआ है। तो बराए मेहरबानी अगर जिन्हें ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से नहाने धोने में भी हम देखते हैं बेपर्दगी का मुजाहरा करते हैं। ये सब हमें सिखाया गया है, ये थोड़ी ना है कि दूसरे कौम की तरह आप भी जैसा मन हो रहा है वैसा कर रहे। नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज़ का तरीका हमें बताया है। एक बात याद आ गई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने सहाबा से फरमाया कि इस्तिंजा इस तरीके से किया जाता है, इतने ढेले लिया जाता है, ऐसे बैठना चाहिए, किस तरफ मुंह करना चाहिए, सब बताया ना, तो काफी लोग को हंसने लगे। कैसा नबी है, इस्तिंजा करने का भी तरीका बता रहा है। हमारे और आपके गांव में तो नहीं, लेकिन हमारे एरिया में भी गैर मुस्लिम है, जानवरों से वो सबक ले सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बकरियां जो है वो बैठ के पेशाब करती है। मैं सुबह सवेरे यहाँ से जाता हूँ, अपने गांव में देखा कि एक आदमी था, वो तो खड़ा होकर पेशाब कर रहा है और उसकी बकरी उसके बगल में बैठ के पेशाब कर रही है। आदमी भी बड़ा है, अक्लमंद भी है, समझदार भी है, सब कुछ है। बकरी कहाँ और आदमी कहाँ? आदमी खड़ा होकर पेशाब कर रहा है, छींटा भी पड़ रही है और बकरी बैठ के पेशाब करती है, पीछे वाली टांगे झुका लेती है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी चीज़ें हमें सिखाई है। इसलिए
सतर अगर खोलने की जहाँ पर जरूरत हो तो खोलें, लेकिन जहाँ पर जरूरत नहीं है वहाँ सतर का मतलब ही होता है छुपाना। सतर का मतलब ही होता है छुपाना। इसी तरीके से औरत, औरत का मतलब ही होता है छुपा हुआ होना। तो औरत का सतर कहाँ तक है? जब उसका माने ही औरत तो पूरी छुपी हुई रहेगी। अलबत्ता नमाज में औरतें दोनों हथेलियाँ बाहर रख सकती है एक घंटे तक, इसी तरीके से चेहरा बाहर रख सकती है, इसी तरीके से दोनों पाँव टखनों से नीचे बाहर रख सकती है। लेकिन चेहरा अगर वो बाहर कहीं जाएगी तो चेहरा छुपाना उस पर फर्ज है। नमाज में फर्ज नहीं है, लेकिन बाहर जाएगी तो वहाँ फर्ज है। क्यों? नमाज में अल्लाह के सामने रूबरू होता है और बाहर के हम जैसे लोगों के सामने रूबरू होते हैं। समझिए बात। तो औरत जो है उसका मतलब ही होता है छुपाना। वो पूरा जिस्म उसका बाल से लेकर तमाम चीज़ें उसका सत्र है। इसी तरीके से अगर नमाज में मर्द के या औरत के सतर खुल जाए तो भी नमाज खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी। इसलिए नमाज भी अगर हम पढ़ें तो हमारा मुकम्मल सतर छुपा होना चाहिए। इसी तरीके से एक बात आ गई, आमतौर पे लोग कहते हैं कि भाई सतर का छुपाना फर्ज है, बाकी अगर हम नहीं छुपाएंगे तो क्या होगा। लेकिन याद रखिए और समझ लीजिए अच्छी तरीके से, क्या आप पसंद करेंगे कच्छे में या सिर्फ अपना हकीकी सतर जो है उसको ढांक के किसी शादी ब्याह में जाना, बाजार जाना, अपना आइज़ा और अकारीब के पास जाना, इसको तो हर एक बुरा मानेगा। इसी तरीके से हमारे दिल में यह एहसास हो कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जा रहे हैं तो अच्छे लिबास में आए, सतर ढांक कर आए। ये तरीका है सुन्नत और आदाब में से, फर्ज तो नहीं है, लेकिन आदाब के जरिए से पता चलता है ये इंसान तहजीब वाला है, मुहज़्ज़ब है। तो सतर का छुपाना भी फर्ज है। इसी तरीके से वक्त का होना भी फर्ज है। अगर नमाज के वक्त के बगैर हम नमाज उसी वक्त के पढ़ रहे हैं तो नमाज नहीं होगी। जैसे कि अभी वक्त है जुमा का, अगर हम असर का पढ़ने लगे तो हमारी ये नमाज सही नहीं होगी। क्यों? एक फर्ज वक्त का होना छूट रहा है। इसी तरीके से नियत का होना फर्ज है। आमतौर पे आप देखते हैं नियत में बहुत गड़बड़ी करते हैं, या कोई इतनी लंबी नियत करता है कि एक रकात गायब हो जाती है और कोई कुछ भी नहीं करता। तो नियत का एक आसान तरीका और बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका ये समझ लीजिए कि जिस नमाज के लिए हम आ रहे हैं पहले से ही हमारे दिल में है कि अभी हम आ रहे हैं तो ये जुमा के लिए आ रहे हैं, तो एक नियत तो यही हो गया जिस काम के लिए हम जा रहे हैं, जिस नमाज के लिए हम जा रहे हैं, ये हमारे दिल का इरादा है। अगर हम जबान से नहीं भी कहेंगे तो हमारी जुमा की ही नमाज होगी। इसी तरीके से दूसरा तरीका यह है कि जो दिल में बात आई है उसको जबान से अदा कर लिया जाए किसी भी जबान में। मसलन हम उर्दू में नियत करते हैं मैं जुमा की नमाज पढ़ रहा हूँ, अगर इमाम के पीछे पढ़ रहा है तो कहेगा मैं जुमा की नमाज इस इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ, इतनी नियत काफ़ी है। इसी तरीके से अगर कोई अरबी जानता है तो वो अरबी में कहेगा अना उसल्ली अल जमा, अना उसल्ली अल जुमा, मैं जुमा पढ़ रहा हूँ, इतनी नियत काफ़ी है। बाकी वो जो किताबों में लंबी चौड़ी नियतें हैं वो सबके बस की बात नहीं है, और जो अरबी जानता है वो अपनी नमाज की नियत बना भी सकता है और पढ़ भी सकता है। लेकिन इतनी बात ज़रूरी है और फर्ज है कि आदमी को पता होना चाहिए कौन सी नमाज पढ़ रहा हूँ, जुमा है, वाजिब है, फर्ज है, सुन्नत है, मुस्ताहब है, नफल है, इन बातों का इल्म इतना नियत के लिए काफ़ी है। इसी तरीके से क़िबले की तरफ रुख करना भी फर्ज है। एक आदमी पूरब की तरफ होकर नमाज पढ़ रहा है तो उसकी नमाज नहीं होगी। क्यों? एक फर्ज छूट रहा है क़िबले की तरफ। हमारा क़िबला पश्चिम है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, इन तीनों की तरफ अगर कोई नमाज पढ़ता है तो नमाज नहीं। ये तो कुछ वो फराइज थे जो नमाज के बाहर, अभी हम नमाज के अंदर घुसे नहीं, नमाज के बाहर है। अगर